اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کچھ میں ولیم لکھ رہا ہوتا ہے جبکہ سلیبی اور مسلمان ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں اپنے ایمان کو چمکتے ہوئے یقین کے ساتھ تولتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے اور ہمارے درمیان ایک پوشیدہ بندھن بناتا ہے۔ آج میں نے اپنے قلم کو ہمارے درمیان اس پوشیدہ بندھن کی خاطر سیاہی میں ڈبو دیا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی میودود اور باقی ساتھیوں کے ساتھ شیرکو کی قبر کے پاس دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آواز گونجتی ہے۔ امیر شیرکو کی سربراہی میں مسلم فوج نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ جنگی تاریخ میں وہ نڈر اور باصلاحیت کماندار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے سپاہی ان سے ایسی عقیدت سے پیار کرتے تھے جو ہر کماندار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہر سپاہی کی طرح وہ بھی انتہائی فیاض اور ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔ دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب امام لے کے ساتھ جنگ میں شیرکو نے ان کی جان بچائی تھی۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی تلوار شیرکو کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے۔ اس دنیا میں جس کا نام لیتے ہی سب کے سب احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے وہ شیرکو المنصور گزرے ہیں۔ اگلے منظر میں صلاح الدین ایوبی وزیر کا لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور آواز گونجتی ہے۔ امیر شیرکو کی موت کے فوراً بعد سلطان نے جسے تخت پہ بیٹھنے کی خلط بھیجی وہ امیر صلاح الدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے۔ عظیم سلطان ان لوگوں سے آتے ہیں جو عقل اور جسارت رکھتے ہیں، تاہم یہ ان کی قسمت چمکانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تیار ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آواز مزید گونجتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ جن سے امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تقدیر کے چکر میں پھنس گئے۔ جس کی پشت پر خداوند کی ہوا ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ صلاح الدین کا مقدر کیا ہوگا یہ خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر قاضی فاضل ایک مکتوب لکھ رہے ہوتے ہیں اور لکھنے کے بعد سپاہی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ مکتوب انصاف کے علمدار سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب مصر کے وزیر صلاح الدین کی طرف سے ہے۔ مکتوب لیتے ساتھ ہی 3 سپاہی روان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے تینوں اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ ایک مکتوب بغداد تک جا پہنچتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا تخت ان اصولوں پہ قائم ہے۔ ادھر صلاح الدین بھی دیوان کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور مکتوب پہ لکھے گئے الفاظ گونجتے ہیں غلطیاں ذاتی ہوتی ہیں لیکن آفات عمومی ہیں۔ ہمارا رب ہمیں ایک مشکل آزمائی سے آزماتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، علیحدگی میں نہ پڑو۔ میں سردوں پر پلا بڑھا ہوں، میں نے اس دنیا کی گہرائیوں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپو سے سیکھا۔ میرا محل میں لباس پہننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا تخت صرف میرے گھوڑے کی زین ہے۔ جہاں کہیں بھی کفار کے مقابلے میں کوئی مجاہد ہے وہ میرا دنیا اور آخرت کا بھائی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم وقت اور جگہ کے لحاظ سے محدود ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کی آواز ہر جگہ مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے۔ ہماری کوششیں جاری رہیں گی جب تک کہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا نہیں ہو جاتا۔ اپنی عوام کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا گیا وہ پورے وثوق اور ولولے کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ میں جب بھی کسی ٹوٹے دل انسان کو دیکھتا ہوں میں اپنا چہرہ اور سمت ان کی طرف متوجہ رکھوں گا جب تک کہ ان کا درد ٹھیک نہیں ہو جاتا، یہ میری قسم ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں لوگ ان کے سامنے ادب سے جھکتے جاتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ مشقت کا راستہ ہے، خواہ ذلیل ہو جاؤں یا وزیر بن جاؤں میں اپنی قسم کو ہرگز نہیں بھولوں گا۔ کچھ میری زندگی کی حد اور مسجد الاقصی میری منزل ہے، خاتمہ لیک تک بھی جا پہنچتا ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ ظلم و ستم باقی نہ رہے اور اللہ کی عبادت شروع ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو میری دشمنی صرف حملہ آوروں کے لیے ہوگی۔ مظلوم میرے پروں تلے ہیں اور ظالم میری تلوار کے سائے تلے ہیں۔ یہ الفاظ میرا اہل اسلام سے وعدہ ہے۔ کافروں کی بات کروں تو ان کے لیے تنبیہ ہے۔ خط پڑھنے کے بعد امام لیک کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے بڑھتے صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ قاضی فاضل صلاح الدین ایوبی کے ساتھی اور دیگر موجود ہوتے ہیں۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی تخت پہ جا بیٹھتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے میرے رب حقیقت کو بھلا دینے والے تخت سے، حقیقت کو بھلا دینے والی سلطنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر آپ کی وزارت نے تمام مصر کو خوشی دی۔ انصاف کے دیوان میں آپ کی موجودگی میں ریاستی عہدیداران آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ شام میں سلطان اصفہانی سے پوچھتے ہیں کیا شیرکو کے سپاہیوں میں یادگاریں تقسیم کر دی گئی ہیں؟ تو اصفہانی کہتے ہیں میرے سلطان تقسیم کر دی گئی ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ان کی جو یادگار جس کے لیے تھے وہ اسے سونپ دی گئی ہے۔ سلطان کہتے ہیں شیرکو حلب کے بعد سے میرا ہمنوا تھا، میں ابھی تک اپنے آپ میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ میودود کہتا ہے ان جیسے زبان کے پکے چند مجاہدین ہی اس سرزمین پر آتے ہیں، اللہ ان کا مقام بلند فرمائے۔ سلطان کہتے ہیں آمین، وہ ہمیں مصر تحفے میں دے کر چلا گیا۔ ادھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے اب تک مصر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہادر اور اہم لوگوں کو تعینات کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ محل اور فوج میں نظم و ضبط کو یقینی بنایا جائے۔ قاضی فضل اب سے دیوان کے رہنما اور سربراہ مشیر کے ساتھ ساتھ میرے نائب بھی ہیں، ایسس اب سے میرے لشکر کے سردار اعلیٰ ہیں۔ کرتگن بہت پرجوش ہوتا ہے مگر صلاح الدین بھی کہتے ہیں سردار زادے سردار عرفا علی وہ شہر کے نظم و ضبط اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ایک ہی وقت میں گھڑسوار لشکر کے سربراہ بھی ہیں، بزرگ تیر انداز دستے کا کمانڈار ہے اور ساتھ میں جاسوسوں کی طرف سے آنے والی تمام معلومات کو بھی جمع کرے گا۔ پیادہ فوج ادریس کے سپرد ہے۔ ابراہیم محل کی حفاظت کے ذمہ دار تم رہو گے، محل کا سربراہ حکیم لطیف ہے جبکہ خلیل سربراہ معاون اور میرا نائب ہے۔ سب کو ذمہ داریاں ملتی ہوئی دیکھ کر کرتگن بہت بے چین ہو جاتا ہے اور قاضی فاضل سے کہتا ہے دیکھو میرے لیے کوئی فریضہ نہیں بچا، مگر صلاح الدین بھی بول پڑتے ہیں اتنا عرصہ مشکل حالات میں ہمارے راستے کا ہم سفر اور میرا اعتماد بننے والا بورو قبیلے کا سردار کرتگن پیادہ فوج اور سپاہیوں کی ذمہ داری دوبارہ سے ان کی ہے، مگر کرتگن خوش دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ ذمہ داری تو پہلے ہی اس کے پاس تھی۔ صلاح الدین بھی مزید کہتے ہیں کرتگن خزانچی کے ساتھ ساتھ سربراہ تحصیلدار ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے تحصیلدار خزانہ، ذمہ داری کا نام تو دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پرجوش انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں اللہ ناکام نہ کرے، عہدوں کے کاغذات جلد از جلد تیار کر لیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر جو آپ کا حکم۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں لوگوں کو انتظار میں نہ رکھیں، انہیں دیوان میں آنے دیں قاضی فاضل تاکہ انصاف کے دیوان کا آغاز ہو سکے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں۔ خلیل آگے بڑھتا ہوا لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محترم وزیر جلدی آپ کی ایک ایک کر کے شکایات سنیں گے۔ قاضی فاضل صلاح الدین کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ کی اجازت سے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اجازت ملتے ساتھ ہی پہلا شخص شکایت لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے محترم وزیر صاحب میں گنے کے کھیت میں کام کرنے والا غلام ہوں، میں اور میرا خاندان پریشان کن حالت میں ہے، ہمارا مالک ہمیں کھانا نہیں کھلاتا اور حقوق مانگنے پر ظلم کرتا ہے، برائے کرم ہماری مدد کریں۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں ان مالکوں کو کیا ہو گیا، اپنے غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ ان کا کام کم کرتے ہیں؟ تو غلام کہتا ہے ہرگز نہیں، سوائے نیند کے ہم میدان کبھی نہیں چھوڑتے، سب بیمار ہیں پھر بھی وہ رحم نہیں کرتے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، سب
सब एक चिंगारी के इंतजार में हैं। मुझे डर है कि आग लगने पर कोई भी गुस्से को रोक नहीं सकेगा। सलाउद्दीन भी पूछते हैं वहाँ का मालिक कौन है? तो काजी फाजल कहते हैं मिस्र के रईस। चीनी की तिजारत में मुकाबला सख्त हो गया है, उनके कोई उसूल नहीं है, गुलाम इसका शिकार है। यह सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं तुम जा सकते हो, मैं जाती तौर पर इस मामले से निपटूंगा। तफ्तीश मुकम्मल होने तक अपने साथियों का ख्याल रखो। गुलाम के जाते साथ ही शमसा शिकायत लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर सलाउद्दीन भी हैरानगी से कहते हैं शमसा? तो शमसा कहती है मोहतरम वजीर, मैं आपकी इजाजत से अपनी शिकायत का इजहार करना चाहती हूँ। इधर सुल्तान पूछते हैं कायरा से क्या खबर है? तो असफियानी कहते हैं अमीर सलाउद्दीन ने तख्त पर बैठने के बाद जो ज़ाब्ते बनाए उसके मस्बत असरात देखे गए हैं। तो सुल्तान कहते हैं लेकिन ये काफी नहीं है, मिस्र को जिंदगी देने वाला ये शाम है। उन्होंने एक वजह से कैरिक के रास्ते में मुसलमानों के काफिलों पर हमला किया। वो शाम और कायरा के दरमियान तिजारती रास्ते को तोड़ने का इरादा रखते हैं। मेहदोद पूछता है करने वाला कौन है, लुटेरी या सुलेबी? तो सुल्तान कहते हैं उस रास्ते पर कैरिक की मालूमात के बगैर परिंदा तक नहीं उड़ता। हमारे कायरा को कायम दायम रखने के लिए हमें इस रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मेहदोद कहता है क्या हम हरीम के बाद कैरिक पर नजर जुमाएंगे मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं मिस्र को मुकम्मल तौर पर महफूज रखने के लिए हम ये करने पे मजबूर हैं। हमारे पास अच्छा मौका भी है। काउंस मैला वो कैरिक किले की कुछ। सलाउद्दीन भी शमसा से पूछते हैं आपकी क्या शिकायत है? तो शमसा कहती है मुझे शिकायत आपसे है, मैं आपके फैसले से खुश नहीं हूँ। सुनाए कि गुलजारा के कातिल मैला को रिहा कर दिया जाएगा, क्या ये सच है? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। काजी ने ऐसा फैसला सुनाया क्योंकि वो मुजरिम नहीं थी। जवाबन शमसा कहती है और आपने जुल्म के खिलाफ खामोश रहने को तरजीह दी। सलाउद्दीन भी कहते हैं इंसाफ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमारा दिल कहता है शमसा, इस शर्त के साथ कि वो दोबारा मिस्र में दाखिल नहीं होगी, उसे आजाद किया जाएगा। शमसा कहती है मैं कानून की नहीं बल्कि अपने ज़मीर की सुनती हूँ, मुझे आपने मायूस किया वजीर सलाउद्दीन। ये कहते साथ ही शमसा उस लम्हे को याद करती है जब जिंदान में मैला ने उससे कहा था सलाउद्दीन के साथ अपनी मोहब्बत का इस्तेमाल करते हुए तुमने मुझे जिंदान में डाल दिया। वो चापियों था लेकिन तुमने इल्जाम मुझ पर डाल दिया। शमसा ने कहा था इनकार ना करो, तुमने उसे हमारे ठिकाने का बताया था। मैला ने कहा था अगर तुम ये दावा करती हो तो सबूत सामने रखो। शमसा ने कहा था एक मुसलमान के बेस में जासूस बजाते खुद सबूत है, तुम मिस्र में क्यों हो, मुझे जवाब दो। मैला ने कहा था एक और वजह है, ये मेरे और सलाउद्दीन के दरमियान है। शमसा ने कहा था लेकिन सलाउद्दीन आखिर में जीत के तुम्हें वैसे ही सजा दी जाएगी जिसकी तुम मुस्तहिक हो। इस ख्याल के बाद शमसा कहती है वजीर सलाउद्दीन आपने मुझे वाकई मायूस किया, मैं तवक्को कर रही थी कि मैं उसे सजा होते हुए देखूंगी तो शायद मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। सलाउद्दीन भी कहते हैं उसने खुलेआम जुर्म नहीं किया, अदालत ऐसे ही काम करती है। शमसा क्या आप मुझे तवक्को रखती हैं कि मैं बतौर वजीर इस्लाम के कानून की नाफरमानी करूं? शमसा कहती है वो औरत आपको यहाँ मारने आई थी लेकिन उसे मौका नहीं मिल सका, उसने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही। आप किसी ऐसे शख्स को कैसे छोड़ सकते हैं जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है? शाम में सुल्तान कहते हैं कैरिक के काउंट सलाउद्दीन के पास है, हमें ये मौका होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सलाउद्दीन को जल्द अज जल्द खत लिखा जाए, उसे कहो कि काउंट मैला को फौरन मेरे पास भेज दो, उसके लिए शाम की अदालत मुकदमा चलाएगी। तवील जुर्म तवील तफ्तीश का तकाजा करता है, अदालती फैसले से हम कैरिक को एक तरफ ले जाएंगे। उधर शमसा कहती है अगर जुर्म को बरकरार रखना ही था तो हमने दरगाम और शहवार से निजात क्यों हासिल की? वजीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं शमसा खातून आपके अल्फाज सख्त हैं, क्या आपको लगता है कि मैं उन शैतानों की तरह हूँ? शमसा कहती है मैं नहीं कहती लेकिन आपकी मुनसिफाना शख्सियत इस फैसले से दागदार हो जाएगी। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे उन्वान की जरूरत है, फैसले पर सवाल करने से पहले आपको फिक्र और कानून का इल्म होना जरूरी है। शमसा कहती है बिल्कुल, एक मसीही इंसाफ के बारे में कैसे जान सकता है? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। शमसा कहती है मैं समझती हूँ वजीर सलाउद्दीन, रियासत का मजहब इंसाफ है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक दिन समझ जाएंगे। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है। काजी फाजल कहते हैं वजीर हजरत काउंट के कागजात तैयार हो चुके हैं, वो आपके हुक्म के साथ रिहा हो जाएगी। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं उसे देख लूंगा, हम दीवान तलब करेंगे। कुछ में बाडो ने सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है जबकि बालेन सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है वो आदमी जिसे शहजादे ने बाजार में देखा था विलियम को अभी तक इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। सबीला कहती है हर लम्हा जब भी लड़काई का चेहरा देखती हूँ मेरे दिल में शक मजीद बढ़ जाता है। बालेन अब मैं जानती हूँ कि किसी शख्स को मार कर कैसा महसूस होता है। बालेन कहता है मैं जब से वापस आया हूँ इन जमीनों ने मुझे कई ऐसे एहसास सिखाए हैं जिनके लिए मैं अजनबी था, मैं अब किसी भी चीज से भागना नहीं चाहता। सबीला कहती है एबलिन का मुस्तकबिल अभी तक गैर यकीनी है। तो बालेन कहता है बादशाह इमालेक जो भी फैसला करे मैं एबलिन के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बुलंदी पर से चातियों उन्हें देख रहा होता है, अंदर लड़ गए इमालेक से कहता है इज्जत माब फौज अब नज़्म ज़ब्त में है, कोई बगावते नहीं है। मिस्र में शिकस्त और हरीम किला, सलाउद्दीन का तख्त पर बैठना, इन सब चीजों ने सुल्तान नूरुद्दीन की भूख में इजाफा किया होगा। हम मजीद गलतियां नहीं कर सकते, ये काफी नहीं है कि सिर्फ कुछ ताकतवर हो, हमारे तमाम इत्तेहादियों को भी ताकतवर और चौकन्ना होना चाहिए। इमालेक उसके इरादे बांधते हुए कहता है आप एबलिन के बारे में बात करने का इरादा रखते हैं, क्या ऐसा नहीं है? जवाब में लड़काई कहता है अभी तक एबलिन के हुक्मरान का तकर्रुर नहीं किया गया, इस हालत में एक बहुत बड़ा हिफाजती खला है और मेरे ख्याल में सुरमा चातियों सुनवान के लिए सही आदमी है। मगर विलियम कहता है जनाब हमें याद रखना चाहिए कि बालेन असल वारिस है। जवाब में इमालेक कहता है मुझे उनकी जरूरत नहीं जिन्होंने खून के रिश्ते से इस्तेहकाक किया हो, बल्कि वो लोग चाहिए जो तख्त के मुस्तहिक है। विलियम ये सुनते साथ ही विलियम बहुत परेशान हो जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कायरा में समुद्र के किनारे गुलामों से ताजिर काम करवा रहा होता है। इसलिए सलाउद्दीन नबी के पास जाने वाला गुलाम छुपते छुपाते वहां पहुंचता है और अपने एक साथी को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। कुछ में शहजादे को लड़ाई करता हुआ देखकर बालेन सबीला से कहता है ऐसा लगता है कि प्रिंस बाल्डोन भी लड़ाई से गुरेज नहीं करते। ये कहते साथ ही बालेन आगे बढ़कर सिपाही से तलवार पकड़ लेता है और कहता है शहजादे बाल्डोन आपकी तलवार आपके जिस्म का एक हिस्सा लगनी चाहिए। बाल्डोन पूछता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो बालेन कहता है भूल जाओ कि आपने तलवार पकड़ी हुई है, तलवार को आपके जिस्म का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए में चातियों भी वहाँ पे आ जाता है और शहजादे से कहता है मेरा ख्याल है कि आपको तलवार की तरबियत के लिए एक हकीकी सुरमा की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। तो बालेन कहता है आप आखिरी शख्स से जिन्होंने बादरी के उसूलों के बारे में बात की। चातियों कहता है क्या ऐसा वो शख्स कह रहा है जो मुसलमानों से दूर नहीं रह सकता? शहजादे पहला उसूल है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना और वहाँ तुम्हें खौफ जरूर नजर आना चाहिए, जैसे अब मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है बालेन। ये कहते साथ ही चातियों बालेन पे हमलावर होता है। बालेन पीछे हट जाता है और चातियों कहता है ये हैरान और खौफजदा है। ये कहते साथ वो फिर से बालेन पे हमला करता है। उधर समुद्र के किनारे ताजिर का एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है जनाब गुलाम ने वजीर से आपकी और दूसरे मालिकों की शिकायत की है। यह सुनकर ताजिर गुस्से से कहता है वहाँ जाने का उसे रास्ता कैसे मिला? उनमें से कौन वहाँ भाग कर गया था? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ सबके सब एक कितार में खड़े हो जाओ। यह सुनकर शिकायत लगाने वाला बहुत परेशान हो जाता है और वो सब
एक कतार में खड़े हो जाते हैं। ताजिर कोड़ा हिलाते हुए पूछता है, कौन था? तुम में से महल में कौन गया था? तुम हो कौन हमारी शिकायत करने वाले? मगर सबके सब खामोश रहते हैं और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर ताजिर एक पे टूट पड़ता है और उस पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है। कुछ में लड़ते हुए चातियोन बालेन से कहता है, हो सकता है मैं कायरा में अधूरे रह जाने वाले काम को यहाँ पूरा कर सकूं बालेन। तो बालेन कहता है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ छुपने के लिए कोई औरत नहीं है। ये कहते साथ वो चातियोन पे हमलावर होता है। उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के गले पर चली जाती हैं। वहां आने वाला लड़का कहता है, बस काफी हो गया, तुम शहजादे की इस तरह बेइज्जती कैसे कर सकते हो? वो दोनों तलवारें नीचे कर लेते हैं और चातियोन कहता है, मैं अपने शहजादे को दिखा रहा था कि हकीकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जवाब में लड़का कहता है, लड़ने की कोई वजह नहीं बची क्योंकि एवलिन अब से आपका है चातियोन। यह सुनकर बालेन को बहुत गुस्सा आता है। लड़का मजीद कहता है, एवलिन चातियोन को देने का फैसला बादशाह का है। चातियोन खुश होते हुए कहता है, लड़गाई फिर हमें जश्न मनाना चाहिए। ये कहते साथ वो लड़गाई के साथ आगे बढ़ जाता है। बालेन को गुस्से में देखकर सबेला उसके पास आती है और कहती है, बराए करम कुछ गलत मत करना। मगर बालेन आगे बढ़ जाता है। कायरा में सलाउद्दीन भी जिंदान में मैला के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप वाकई ये नहीं सोचेंगी कि मिस्र का वजीर एक बेदिफा औरत को जिंदान में मार डालेगा। तो मैला कहती है, क्या होगा अगर वो औरत वजीर को जिंदान में मार डाले? यहाँ क्यों आए हो? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, क्या अदालत का फैसला नहीं सुनाया गया? आपको शर्त पर रिहा किया जाएगा कि आप फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगी। मैला हैरानगी से कहती है, तुम मेरी जान बचाओगे और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दोगे? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये कोई जान नहीं है, फिक्र ना करें, हम अपने कहे गए अल्फाज को पूरा करते हैं। काश मुझे कौंत माइल्स को इसकी वजाहत करने का मौका मिलता। मैला कहती है, तुम मेरे शोहर का नाम मत लो। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अपने दुश्मनों और दोस्तों का जिक्र करना मेरा हक है। माइल्स ने मुझे बेरहमी से कुएं में फेंक दिया, फिर उसने मिस्र में तलवार से मेरा मुकाबला किया। अगर मैं उसे ना मारता वो मुझे मार देता। मैला कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रही हो, तुमने उसे मार डाला, बस यही सच है। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम गलत हो, जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा और उसे अकेला छोड़ दिया उन्होंने उसे कत्ल किया। मैला कहती है, वो अकेला रह गया, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह हमारा दुश्मन है। माइल्स का खून तुम्हारे हाथों पर है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, सच्चाई को देखने के लिए तुम्हें अपने दिल से बोझ निकालना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो तो आओ और मेरे सामने खड़ी हो जाओ। मैं जिस तरह मिस्र में इंसाफ राहम करता हूँ मैं तलवार से भी इंसाफ करूंगा। इसलिए में काजी फाजिल आते हैं और कहते हैं, एक अहम मसला है, गुलाम ने दीवान में जो कहा वो सच था, गुलामों की जानिब से खबरें अच्छी नहीं है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी चले जाते हैं। इधर बालेन गुस्से में बादशाह के कमरे की जानिब बढ़ता ही चला जाता है। विलियम उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ लेकिन तुम्हें सब्र करना चाहिए, तुम्हारे पास पहले ही काफी दुश्मन है, क्या तुम बादशाह की भी मुखालफत करोगे? तो बालेन कहता है, ये वक्त सब्र का नहीं बल्कि उनसे हिसाब करने का है विलियम। वो जाने लगता है। विलियम फिर से उसे रोक लेता है मगर उसके सारे कहे गए अल्फाज बेसूद होते हैं और बालेन आगे बढ़ जाता है। वो बादशाह के कमरे में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज से कहता है, बादशाह मालिक। उसे देखते हुए मालिक कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने एवलिन के बारे में मेरा फैसला सुन लिया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो। तो बालेन कहता है, मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपके फैसले को तस्लीम नहीं करता। यह सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है। उधर ताजिर एक के बाद एक गुलाम को पीटता ही चला जाता है और कहता है, चले जाओ और इसके बारे में जाकर शिकायत करो। इधर मालिक बालेन से कहता है, काश तुम ये जुर्रत मिस्र में सलाउद्दीन के खिलाफ दिखाते, हो सकता था कि फिर एवलिन तुम्हारा होता। बालेन कहता है, आपने वो शर्त रखी जिसका मैं हकदार था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, मैंने इसे कबूल किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैंने ये भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। मालिक कहता है, अपनी हद से आगे ना बढ़ो। मगर बालेन कहता है, मेरे लिए आप कोई हद नहीं है, जान लें कि जो मेरा है मैं उसे लेने की पूरी कोशिश। समुद्र के किनारे ताजिर गुलामों पे कोड़े बरसाते ही चला जाता है, एक के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, और इस तरह ये चलता ही रहता है। अपने साथियों पे जुल्म होता हुआ देखकर सलाउद्दीन बीवी के पास जाने वाला गुलाम बोल पड़ता है, रुक जाओ, वो बेकसूर है, मैं महल गया था। ये सुनते साथ ही ताजिर के सिपाही उसे गिरा देते हैं और ताजिर उस पे पांव रखते हुए कहता है, तो महल तुम गए थे, अपने मालिक की शिकायत की, हाँ, तुम्हें क्या उम्मीद थी यहाँ आकर तुमको और यहाँ के सब लोगों को आजाद करेगा? हाँ। जवाब में गुलाम कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ वही मांगा जो हमारा हक है। ताजिर उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारा हक ये है। ये कहते साथ ही उस पर कोड़े बरसाते ही चला जाता है। कुछ में मालिक आगे बढ़ते हुए बालेन के पास आता है और उसे कहता है, हिम्मत एक नेक एहसास है लेकिन हिम्मत और हिमाकत के दरमियान एक बहुत पतली लकीर होती है और तुम उस लकीर की गलत तरफ चले गए हो बालेन। मालिक सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इसे हुदूद में रहना चाहिए था, जिंदान में ले जाओ इसे। ये सुनकर सिपाहियों से लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं सबीला वहां आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? तो मालिक कहता है, लार्ड बालेन सीख रहा है कि बादशाह के सामने किस तरह बात करनी है बेटी। सबीला कहती है, जहां अपना जो कुछ भी हुआ इसे माफ कर दें, इसका गुस्सा अपनी सरजमीन से इसकी वफादारी की वजह से है, मेहरबानी करें जहां अपना। यह सुनकर मालिक बालेन से कहता है, तुम्हारे भाई और अपनी प्यारी बेटी की खातिर मैं तुम पर आखिरी एहसान करूंगा बालेन, तुम इस एहसान की कदर करोगे और जहाँ से आए हो वापस लौट जाओगे यूरोप, वो भी फौरन, वरना ना मेरी बेटी और ना तुम्हारे भाई की याद तुम्हें बचा सकेगी और इस बार तुम जिस जगह जाओगे वो जिंदान नहीं होगा। उधर ताजिर गुलाम को मार मार कर उसकी पेट लाल कर देता है। फिर बाकियों से कहता है, गौर से देखो और इससे इबरत हासिल करो, तुम लोग सिर्फ काम करने के लिए हो, हमारी यानी मिस्र के लोगों की खिदमत के लिए। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, शिकायत करना हमसे गद्दारी है। तुम्हारे वजूद के मालिक कौन है? कि इस्लाम में वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर ताजिर कहता है, वजीर हजरत खुशामदीद, अपने पाँव मिट्टी से गंदे किए और यहाँ क्या वजह है? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, इन लोगों ने किससे गद्दारी की ये बताओ। जवाबन ताजिर कहता है, मैं सिर्फ मिस्र के अमीर लोगों के अमलाक का मुहाफिज हूँ, मेरा काम है कि ये यकीनी बनाऊं कि ये लोग सही से काम करते हैं। वजीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं, तुमने अपने मुंह से कहा वो इंसान है, मेरे शहर में मेरे वजारत के मातहत ये बेदिफा और बेबस हैं, क्या तुम्हें इन लोगों पर तशद्दुद करते हुए शर्म नहीं आती? जो तुम्हारे लिए काम करते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताजिर मुस्कुराते हुए कहता है, वजीर हजरत यकीनन आप नहीं जानते कि मिस्र में हालात कैसे चलते हैं और ना ही कायरा के पोशीदा मालिक कौन है ये जानते हैं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बेशक हम नहीं जानते लेकिन जालिम का हक क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते साथ ही वो ताजिर का गला काट डालते हैं। उसका सिपाही कहता है, ये जगह खलीफा अज़द की है, हम यहाँ उनके हुक्म से हैं। काजी फजल कहते हैं, जमीन खलीफा की है, जो लोग इस जमीन का इंतजाम करते हैं वो चीनी ताजिर और सिपाही, ये वो लोग हैं जो शहवार की फौज से फरार हुए, यानी कि सब कुछ इस मैदान की तरह किराए पर है। ये सुनकर सलाउद्दीन भी बुजुर्ग से कहते हैं, इन सबको जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही बुजुर्ग और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। सलाउद्दीन भी आगे बढ़ते हैं और गुलाम को खड़ा करते हैं। गुलाम उनसे कहता है, मुझे मालूम था कि आप आएंगे, अल्लाह आपका बोझ हल्का करे और आपको दोनों जानों में खुशियां अता फरमाए। सलाउद्दीन भी कहते हैं, इब्राहिम इसके जख्म देखो। ये सुनते साथ इब्राहिम उसे ले जाता है और वजीर सलाउद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं, तफसील से
से मालूम करो कि ये खलीफा किसके साथ काम करता है। आइए देखते हैं कि ये अहम लोग कौन है। कुछ में लड़काई चातियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, एबलिन मसला हल हो गया है, लेकिन कैरिक बहुत अहम है। हम काउंस को अपनी तरफ करेंगे, इमालेक को हर तरफ से घेरेंगे। चातियों काउंस को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई मामूली सा भी मसला पैदा हो। शाम में सुल्तान यारोकी से कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सलाउद्दीन की वजारत को कबूल नहीं करता? इसकी वजह क्या है? तो यारोकी कहता है, अमीर सलाउद्दीन दोस्त और दुश्मन दोनों पर बहुत ज्यादा रहम करता है। हुक्मरानी के लिए मजबूत इरादे की जरूरत होती है और उसके पास इसकी कमी है। हम किसी ऐसे शख्स की बात नहीं करते जिसमें कमी हो। ये कहते साथ ही यारोकी उस समय को याद करता है जब सलाउद्दीन यूबी ने उसे कहा था, हमें जब इत्तेहाद की जरूरत है, जब हमें इस सरजमीन पर तुम्हारी मदद की जरूरत है जिससे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं है, तो पलूं को क्यों जला रहे हो यारोकी? यारोकी ने कहा था, मैं तुम्हारी तरह मदरसे में नहीं पला बढ़ा, मैं तुम्हारी तरह लंबे और मुख्तलिफ अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन जो रास्ता जानता हूँ उस पर चलता हूँ और अपनी ताकत भी वहाँ से लेता हूँ। तुमने शुरू से ही अपने मंसूबे पर अमल किया। ये सोचते हुए मैं मुनाफिक बनकर यहाँ नहीं रुक सकता। इस ख्याल के बाद यारोकी कहता है, मेरा ख्याल है कि अय्यूबियों को जो वसी मुराद दी गई है उसकी कोई खास वजह नहीं है मेरे सुल्तान। जवाब में सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे खदशात की बजाय कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे सलाउद्दीन पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हारी खिदमत से भी वाकिफ हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान उठते हैं और कहते हैं, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हरीम किले पर हुकूमत करो यारोकी। हम जानते हैं कि उन्होंने चातियों को आजाद कर दिया। ज़ाहिर मालेगी से अपने गंदे मंसूबे के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे वक्त में तुम और तुम्हारे सिपाही हरीम किले के लिए बेहतरीन होंगे। मगर यारोकी कहता है, सुल्तान मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं हरीम किले के लिए मौजूद शख्स हूँ, बल्कि इसके लिए आपको एक और अय्यूबी अमीर मिल जाएगा जिसे आप उसके लिए की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ये कहते साथ ही यारोकी जाने लगता है तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, यारोकी भूलना मत, मेरा बेटा मलिक साले इस्माइल अब भी तुम्हारे पास अमानत है। यह सुनते साथ ही यारोकी चला जाता है। कायरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजल सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, सिर्फ वो गरीब गुलाम ही नहीं बल्कि मिस्र के तमाम लोग गमगीन हैं। कायरा एक बड़ी कश्मकश में है, इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, शहवार को अपनी जेब के अलावा कुछ नजर नहीं आया। जब मैं तख्त पर बैठा तो मैंने सिर्फ ये देखा कि गरीब गरीब तर होता चला गया और अमीर अमीर तर हो गया। काजी फाजल कहते हैं, एक तरफ शहवार दूसरी तरफ खलीफा। मिस्र को शायद के छत्ते के तौर पर देखा गया, लेकिन अब वो छत्ता सूख गया है। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हम इस सूखे छत्ते को ठीक करेंगे। खलीफा के पास जाओ और उसे कहो कि मैं फौरन उससे बात करना चाहता हूँ। काजी फाजल पूछते हैं, लेकिन आपके जहन में क्या है? सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मैं पता लगाऊंगा कि उसने गुलामों के साथ होने वाले इस जुल्म को कैसे नजरअंदाज किया। काजी फाजल कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो परवाह करेगा। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, वो करेगा। उधर खलीफा भी दिखा दिया जाता है जो उसे कह रहा होता है। सलाउद्दीन फरीजे के लिए तैयार साबित हुआ। खलीफा असद उसने हुज्जाज को बदल दिया। वो यहाँ अहले सुन्नत को आबाद करना चाहता है। उन्होंने फातमी रियासत के लिए बरसों से काम करने वालों को बरतरफ कर दिया और उनकी जगह नेम मुकर्रर किए। उसने फौज की जिम्मेदारी संभाली और अपने वफादार आदमी कमांडर लगा दिए। वो फातमी कमांडर को फांसी देना चाहता है। वो खुलेआम आपको नजरअंदाज कर रहा है। उसने आपकी मलकियत में घुसकर आपके गुलामों के मुहाफिज को मार दिया। खलीफा कहता है, उसने अच्छी तरह मंसूबा बनाया कि क्या करना है और कैसे करना है। सुल्तान और उद्दीन मुझे पीठ में खंजर की तरह चुपता है। उसने वजीर की तकर्री में मुदाखलत की तो मुझे मजबूरन उसे मंजूर करना पड़ा। जोर कहता है, दर हकीकत अमीर यारोकी के मिस्र से निकलने से हमारी ताकत कम हो गई है। खलीफा कहता है, हम सलाउद्दीन की जवानी और ना तजुर्बेकारी से फायदा उठाएंगे ये सोचा था, लेकिन जो कुछ उसने किया वो सबसे बदतर है। इसलिए मैं स्पाई आकर कहता है, काजी फाजल आपके हुजूर मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जोर चुपने लगता है तो खलीफा कहता है, रुको डरो मत, तुम अब मेरी हिफाजत में हो। इजाजत मिलते साथ ही काजी फाजल वहाँ दाखिल होते हैं और जोर को वहाँ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इधर आगे बढ़ते हुए मार्कोस बालेन से कहता है, क्या बादशाह मालेक के हुक्म की तामील करते हुए यूरोप वापस जाएंगे? तो बालेन कहता है, हम यूरोप नहीं बल्कि एबलेन जाएंगे। मार्कोस खुश होते हुए कहता है, यह है एबलेन के कौन बरीसा का बेटा। बालेन कहता है, दोस्त दुश्मन सबका पता चल जाएगा। जो मेरा है उसे पाने के लिए मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। उधर जोहर की जानिब देखते हुए काजी फाजल खलीफा से कहते हैं, सब जानते हैं कि इस शख्स ने मिस्र को किस तरह नुकसान पहुंचाया, इसे इंसाफ के हवाले करना जरूरी है। खलीफा कहता है, जैसे मैंने तुम्हें शहवार के हवाले नहीं किया था वैसे ही जोहर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, ये मेरी हिफाजत में है। जवाब में काजी फाजल कहते हैं, खलीफा इज्जत में बेकसूर था, लेकिन इस शख्स के किए गए जराइम को शुमार करने में लंबी जिंदगी लगेगी। खलीफा कहता है, तुम भी नए वजीर के जुर्म के हिस्सेदार हो काजी फाजल। मैंने सुना है जो तुमने जाकर मेरी जायदाद में किया। काजी फाजल कुछ कहने लगते हैं तो खलीफा चिल्लाते हुए कहता है, अपने उज़र अपने पास रखो। फिर खड़े होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि क्या और क्यों किया जा रहा है, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जंगियों से नहीं पूछूंगा कि मैं अपनी सरजमीन की हिफाजत कैसे करूंगा। काजी फाजल कहते हैं, वजीर सलाउद्दीन आपसे फारिग वक्त में मिलना चाहते हैं, मैं आपको मतला करने यहाँ आया हूँ। खलीफा कहता है, मिलते हैं। अब आमने सामने बात करने का वक्त आ गया है। उधर खलीद सलाउद्दीन यूबी के पास जाकर उन्हें खत देता है जो कि सुल्तान की तरफ से आया होता है। खत में लिखा गया होता है, मिस्र के बाद हमारी तलवार का नया निशाना कैरिक किला है, इसलिए किले को संभालने वाली महिला खातून का हमारे पास होना यह इंतहाई अहम है। मैंने फैसला किया है कि उसका मुकदमा शाम की अदालत में चलाया जाएगा। खत पढ़ने के बाद सलाउद्दीन यूबी बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, क्या मुझे वजीर बनाने वाली दस्तावेजात वापस कर देनी चाहिए या वो करूं जो इस खत में लिखा है? इसलिए में काजी फाजल भी वहाँ जाते हैं और कहते हैं, खलीफा मिलने के लिए तैयार है। फिर सलाउद्दीन यूबी को परेशान देखकर पूछते हैं, क्या कोई मसला है? जवाब में सलाउद्दीन यूबी खत उन्हें दे देते हैं और कहते हैं, सुल्तान ने मैला का मुतालबा किया है। काजी फाजल कहते हैं, वजीर हजरत आपका इम्तिहान अब शुरू होता है। उधर जिंदान से निकलने के बाद मैला आगे बढ़ रही होती है, जबकि काजी फाजल के अल्फाज गूंज रहे होते हैं, आप अमीर हैं या वजीर? अमीर हुक्म की गैर मशरूत तामील करते हैं, लेकिन वजीर खुद फैसला करते हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, आप या तो इंसाफ करोगे एक गैर मुस्लिम औरत के खिलाफ भी जिसने आपको मारने की कोशिश की, या सुल्तान के हुक्म की तामील करें और उस शख्स को कैद कर दें जिसे आपने कहा कि वो आजाद हो जाएगा। ये एक सख्त इम्तिहान है, लेकिन अब से रास्ता और फैसला आपका है। सख्त हिफाजती इक़दामात में मैला आगे बढ़ती ही चली जाती है। बहुत से लोग जमा होते हैं जिन्हें देखते हुए मैला कहती है, मुझे कोई सजा नहीं मिली, नहीं छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये कहते साथ वो भागने लगती है तो सिपाही से पकड़ लेते हैं और सिपाहियों के सरबराह कहता है, खामोश रहो, ये उसूल है। सबसे पहले तुम्हें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें तुमने परेशान किया है, फिर तुम इस तरह जाओगी। ये कहते साथ वो उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। मैला कहती है, नहीं, मैं इस तरह जलील नहीं होंगी। सरबराह लोगों से कहता है, दीन रियासत, अमीर और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली और अपनी शनाख्त छुपाकर जासूस के तौर पर काम करने वाली ये औरत पहले मुसलमानों के सामने पेश होगी और फिर इसके जुर्म का ऐलान किया जाएगा, इसे इस्लामी सरजमीन से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही लोग मैला पर पत्थर बरसा देते हैं। शमसा, कर्तगन और जमशेद भी ये मंजर देख रहे होते हैं और जमशेद गमगीन होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दें काउंस। कर्तगन कहता है,
आह राहिया आह, वो खुद तो चली जाएगी लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाएगी। कितने अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत औरत अब सब बर्बाद हो गया। महिला गमगीन होते हुए उस समय को याद करती है जब बचपन में स्लेबी सिपाही उसकी खाला को भी इसी तरह कैद करके ले जा रहे थे और लोग उसकी खाला को भी मार रहे थे। इस ख्याल के बाद सिपाही उसकी हिफाजत करते हुए कायदा में सिपाही लोगों के बीच से महिला को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग उसे बुरा भला कहते हुए पत्थर मार रहे होते हैं। सिलसिले में वजीर सलाउद्दीन वहां पहुंचते हैं और लोगों को रोक देते हैं। शाम में उमर मल्ला सुल्तान से कहते हैं, लगता है यारुकी की लालच उसके होश आवाज पर छाई हुई है, तो इसी वजह से वो नहीं जानता कि उसकी लापरवाही पर मबनी हरकतों ने इत्तेहाद को तोड़ा है। सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन के खिलाफ उसकी नफरत और गुस्से की कोई वजाहत नहीं है, मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया। हर हाल में सलाउद्दीन पर मेरा पूरा भरोसा है। मेहदोद कहता है, सुल्तान मौज़म ऐसा ही है, लेकिन आप जो एतमाद सलाउद्दीन के लिए दिखाते हैं यारुकी भी चाहता है। सलाउद्दीन के लिए दिखाई जाने वाली आपकी मोहब्बत यारुकी के लिए बहुत भारी है। सुल्तान कहते हैं, मुझे किसी मुनासिब वक्त में उन दोनों से बात करके मसला हल करना होगा। पहले सलाउद्दीन जरा पकड़ी गई महिला को मेरे पास भेज दे। कायरा में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, महिला को मिस्र से जिलावतन किया जाएगा, लेकिन इस तरह लोगों के सामने नुमाइश नहीं की जाएगी। मुझे मिस्र के वजीर के तौर पर यह मंजूर नहीं है। ये औरत मिस्र से बाहिफाजत बाहर जाएगी, आप लोगों को मुंतशिर करें। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ते हैं और सबको वहां से भेज देते हैं। फिर सलाउद्दीन भी उर्फ और बुजुर्ग से कहते हैं, जब तक महिला मिस्र की सरजमीनों से निकल नहीं जाती तुम लोग इसकी रहनुमाई करोगे। दूर खड़ी शमसा गुस्से से कहती है, तुम्हें तो इसे महल तक छोड़कर आना चाहिए। महिला सलाउद्दीन भी से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या कर रहा हूँ? महिला पूछती है, मुझे क्यों बचा रहे हो? जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं खुसूसी तौर पर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा, किसी भी खातून के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। महिला कहती है, काश कोई ऐसा होता जिसने मेरी खाला के लिए भी ऐसा कहा होता। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, मैं समझा नहीं। तो महिला कहती है, मैं जिस आदमी को यहाँ मारने आई थी वो मुझे मेरी जिंदगी लौटा रहा है। खुदावंद के पुरस्कार मंसूबे। इसके साथ ही और बुजुर्ग उसके साथ चल पड़ते हैं। करतगन पीछे से राइया राइया करता रह जाता है। फिर वजीर सलाउद्दीन जैसे ही शमसा की जानिब बढ़ने लगते हैं, शमसा चली जाती है। एवलेन में लोहार तलवारें बना रहा होता है। इसलिए में मार्कोस चौका पहने बालेन के साथ वहां आता है और लोहार से कहता है, काम में आसानी हो लियोन। तो लियोन कहता है, बूढ़े बहुत दिनों से आसपास नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि तुम बालेन नामी बुजदिल की पैरवी कर रहे हो। ये सुनते साथ ही बालेन आगे बढ़कर अपने चार आया कर देता है और कहता है, सच कह रहे हो। ये कहते साथ ही बालेन तलवार पे जब लगाता है और मजीद कहता है, तुमने बरसों तक मेरे खानदान के लिए बेहतरीन तलवार बनाई है लियोन। लियोन कहता है, सच है, क्योंकि तुम्हारे बाबा और भाई दोनों बहादुर कौन थे जो बेहतरीन तलवारों के मुस्तहिक थे। बालेन कहता है, और मैं बुजदिल कौन हूँ? हाँ, क्या तुमने थोड़ी देर पहले मार्कोस को नहीं कहा? तो लियोन कहता है, बुजदिल बालेन, तुम एवलेन के मुश्किल तरीन औकात में गायब हो गए थे, अब तुम बेचारगी की हालत में बादशाह माले की तरफ देख रहे हो। बालेन कहता है, तुम इस तरह सोचने में हक बजानिब हो, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और मुझे एवलेन के लिए एवलेन के लोगों की जरूरत है। मैं शहर के बाहर पुराने सराय में इंतजार करूंगा। फौजी, ताजिर, बेरोजगार हर एक को वहाँ लेकर आओ जो एवलेन में मेरे लिए बात कर सके। वैसे तुम्हारी तलवारें अब भी सबसे बेहतरीन हैं। ये कहते साथ ही बालेन मार्कोस के साथ चला जाता है। उधर एक मुकाम पे खड़ा चातियोन महिला का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, एक खूबसूरत औरत के इंतजार का एहसास मैंने बरसों से इसका तजुर्बा नहीं किया है। ये एहसास मुझे भूख का एहसास दिला रहा है। मुझे एक सेब दो। ये कहते साथ वो सेब खाने लग जाता है। इसलिए मैं उर्फा अपने साथियों के साथ महिला को लेकर वहाँ पहुंचता है तो चातियोन बाजू फैलाते हुए कहता है, खूबसूरत कौन? हमारी नजरें रास्ते में ही रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इन वैश्यों ने तुम्हारे साथ बदसलूकी करने की हिम्मत नहीं की होगी। उर्फा कहता है, ये बर्बरियत तो तुम्हारे कामों में से एक है। चातियोन से कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। रॉबर्ट मेरे बेहतरीन सिपाहियों में से एक था। ये कहते साथ ही वो समय को याद करता है जब मैदान जंग में उर्फा ने रॉबर्ट को मौत के घाट उतारा था। इस ख्याल के बाद चातियोन कहता है, अगर तुम्हें अभी हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। उर्फा उतना ही लगता है कि महिला कहती है, चातियोन, मैं अभी जल्द से जल्द कैरक वापस जाना चाहती हूँ। यह सुनकर चातियोन उर्फा से कहता है, तुम आज खुशकिस्मत हो, लेकिन अगली बार ना तो तुम्हारी और ना ही सलाउद्दीन की खुशकिस्मती होगी। उर्फा कहता है, अपनी गंदी जबान से मेरे वजीर का नाम ना लो। ये कहते साथ ही उर्फा लोग पलट जाते हैं और चातियोन महिला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको दिया गया वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं अपने सुरमाई एजाज की कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन सलाउद्दीन को तुम्हारे पास लाऊंगा। महिला कहती है, मैं अब थकी हुई हूँ और किले जाकर आराम करना चाहती हूँ। शाम में स्फियानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान सलाउद्दीन ने यह खत कायदा से भेजा है। खत पढ़कर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहते हैं, सलाउद्दीन मिस्र के काजियों का फैसला सुनकर महिला को जलावतनी की सजा दे चुका है। मेहदोद कहता है, यानी कौन महिला हमारे हाथ में नहीं है। सुल्तान कहते हैं, जबकि कैरक किले की फतह के लिए वो औरत इतनी जरूरी थी, सलाउद्दीन ये चीज कैसे कर सकता है? मेहदोद कहता है, उसने अदालत के फैसले पर रज़ामंदी दिखाई है। सुल्तान कहते हैं, वो एतराज करके जलावतनी की जगह यहाँ शाम को मुकर्रर कर सकता था। वज़ीर अहमद कहते हैं, वो कानून की पाबंदी करके उसे हमारी तरफ खींचना चाहता था मेरे सुल्तान। सुल्तान मेहदोद से कहते हैं, फौरन से पहले मिस्र जाओ और इस मामले की तय का पता लगाओ। मेहदोद कहता है, मेरे सुल्तान जाने को मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या ये सलाउद्दीन की वजारत पे साहिब बनाने के मुताबिक नहीं होगा? अस्फियानी भी कहते हैं, अगर सलाउद्दीन के तख्त पे फाइज होने के बाद फौरन मलिक मेहदोद मिस्र चले जाते हैं तो इससे वहाँ बदमनी फैलाने वालों की हौसला अफजाई होगी। मेरे सुल्तान ऐसा ना होने दें, वो अभी ना तजुर्बेकार है। सुल्तान कहते हैं, मैंने उसे ये सोचकर वजीर बनने दिया कि उसने बतौर अमीर तजुर्बा हासिल किया, लेकिन उसने क्या किया? मेहदोद वजीर अहमद को अपने साथ ले जाओ, कैरक के रास्ते में जाओ, तुम काउंस को पकड़कर यहाँ लाओगे, इससे पहले कि वो सलेबियों की सरजमीन में दाखिल हो। यह सुनते साथ ही मेहदोद चला जाता है। कायरा में सलाउद्दीन भी काजी फाजिल से कहते हैं, मैंने अपने सुल्तान को खत भेजा है कि मैंने काउंस महिला को आजाद कर दिया है। काजी फाजिल पूछते हैं, आपके ख्याल में इस पर सुल्तान का क्या रद्दमल आएगा? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, हमारे सुल्तान समझ जाएंगे। इसलिए में बोझो आकर कहता है, मोहतरम वजीर साहब, हमें एवलेन में अपने जासूसों से खबर मिली है। बालेन बादशाह माले की तरफ से चातियोन को दिए गए तख्त पर दोबारा दावा करने के लिए सिपाहियों को जमा कर रहा है। सलाउद्दीन भी परेशान होते हुए कहते हैं, ऐसा अमल बालेन के लिए तबाही का बाइस होगा। काजी फाजिल कहते हैं, चातियोन का एवलेन का कौंत बनना। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लाड़गाई और चातियोन इक्तदार चाहते हैं, वो एवलेन को लेकर बालेन को खत्म करना चाहते हैं। काजी फाजिल पूछते हैं, वजीर हजरत क्या सोच रहे हैं? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जब तक हम कुछ फतह नहीं कर लेते बालेन के लिए एवलेन का तख्त हासिल करना बेहतर है। इसलिए मैं करतगन सोने से बड़ा संदूक लेकर वहाँ आता है और उसे सलाउद्दीन के सामने रखकर खोल देता है। फिर खुश होते हुए कहता है, रेशमी कपड़ों में मलबूस गीदड़ जिनके मुहावजों को तुमने शिकस्त दी थी उन्होंने भेजा है। काजी फाजिल कहते हैं, तो यानी वो आखिर में अपने महसूल अदा करने के लिए राजी हो गए हैं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जो अपने कंधों पर सर रखना चाहते हैं रियासत और अवाम के हुकूक पर नजर नहीं डालेंगे। करतगन कहता है, अगर कोई और हक वसूल करना है तो बताएं, मुझे ये काम बहुत पसंद है। तहसीलदारी सरदारी के काम से ज्यादा लुत्फानंदोज है, कभी देना होता ही नहीं, हमेशा लेना होता है। सलाउद्दीन भी कहते हैं, तो फिर तैयार हो जाओ करतगन, मैं किसी और को जानता हूँ जो तहसीलदार का मोहताज है, हम दूसरे हिसाब किताब चुकता करते हैं। काजी फाजिल उधर हम देखते हैं कि मिस्र के अमीर ताजिर बैठे जबरदस्त खाना खा रहे होते हैं।
हैं और एक कहता है मिस्र के हकीकी मालिक इस दस्तरखान पर हैं। जरगाम शहवार और मिस्र के तमाम वजीर इस हकीकत को जानते हैं और इसी के मुताबिक हुकूमत करते हैं, लेकिन नए वजीर सलाहुद्दीन बदकिस्मती से इससे बेखबर नजर आते हैं। दूसरा कहता है उसने जो महसूल लगाए हैं उनका क्या होगा, ये नाकाबिले कबूल है। पहले वाला कहता है वो समझता है कि वो अमीरों से पैसे नहीं ले सकता, वो अपनी आमदन में इजाफे के पीछे है। दूसरा कहता है वो अवाम की खिदमत की आड़ में हमारी दौलत भी ले सकता है, लेकिन यकीनन वजीर सलाहुद्दीन जान लेगा कि मिस्र में चीजें मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। इसलिए सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ उनके सर पर आ पहुंचते हैं और उनके पास बैठते हुए पूछते हैं तुम मुझे क्या सिखाओगे। वो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इधर चातलियन मैला को लेकर कैरेक किले की जानिब बढ़ रहा होता है और मैला को खामोश देकर कहता है मैं आपकी खामोशी को आपकी थकावट से मंसूब करता हूँ मेरी काउंट, लेकिन परेशान ना हूँ। कैरेक करीब है। मेहदूद के सिपाही गात लगाए बैठे होते हैं। मेहदूद कहता है वो शैतान चातलियन के साथ है। बैबोरा कहता है क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है जन्म कुर्बान, हम अपने सुल्तान का सामना करेंगे तो एक हाथ में काउंस और दूसरे हाथ में चातलियन होगा। अगले लम्हे मेहदूद हमला कहकर आगे बढ़ता है। उसके सिपाही स्लूबियों पर तीर बरसा देते हैं। यह देखकर चातलियन बुलंद आवाज से कहता है जंगी हालत में आओ, काउंस की हिफाजत करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और जंगी उन पर चढ़ दौड़ते हैं। वजीर अहमद और मेहदूद काफिरों को जहन्नुम वासिल करने लग जाते हैं। बैबोरा भी जबरदस्त अंदाज में तलवार चला रहा होता है। चातलियन भी जंगी सिपाही को शहीद करता ही हैं। कायरा में सलाहुद्दीन भी ताजरों से पूछते हैं तो बताओ मुझे क्या सिखाओगे। एक ताजर कहता है वजीर सलाहुद्दीन चूंकि आप ओहदे पर नए हैं इसलिए आप हमें नहीं जानते। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं फिक्र ना करो, मैं उन चीजों से वाकिफ हूँ जो आप तिजारत की आड़ में करते हैं। दूसरा ताजर कहता है हम ताजर हैं जो इंसाफ और इस्लामी कानून के मुताबिक तिजारत करते हैं। जो हमें वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अपनी गंदी जबान से इंसाफ और इस्लामी कानून का जिक्र ना करो। तो ताजर कहता है ईमानदारी से तिजारत करना और उसके मुताबिक कमाना कब से जुर्म बन गया है वजीर सलाहुद्दीन। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तिजारत करना जुर्म नहीं है, असल मसला गरीब गुरबा के हुकूक की पामाली है। एक और ताजर पूछता है क्या खेतों में हमारे मुहावजों को मारकर गरीबों का हक मांगोगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अब से मिस्र में हर शख्स इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारेगा, उन्हें वही मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, उनकी जान खून और जायदाद हर चीज से बरतर और अजीज होगी। एक और बात भी है, अब से अपना महसूल सोने के एक भी सिक्के की कमी के बगैर अदा करोगे। पहले वाला ताजर कहता है तुम शाम में नहीं मिस्र की सरजमीन में हो, यहाँ के रस्म और रवाज और तिजारत मुख्तलिफ है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं इस्लाम का इंसाफ शाम में भी एक है और मिस्र में भी। अगर जो मैंने कहा नहीं करते, ना सिर्फ मिस्र में तिजारत करना, मैं तुम्हें यहाँ सांस भी नहीं लेने दूंगा। ताजर हंसते हुए कहता है तुम जैसे कई वजीर यहाँ आए और गुजर गए। वजीर सलाहुद्दीन हम हमेशा यहाँ रहे हैं और हमेशा यहाँ रहेंगे। मेरा आपको एक मशवरा है। ऐसे आगे बढ़ने लगते हैं मगर वजीर सलाहुद्दीन उन्हें रोक देते हैं। ताजर मजीद कहता है इबरत हासिल करने के लिए कायरा के दरवाजे पर लटकाए गए वजीरों के सर बहुत कुछ कह रहे हैं और वो इबरत हासिल करने के लिए काफी हैं। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन खड़े हो जाते हैं और अगले लम्हे खंजर से उसका गला काट डालते हैं। यह देखकर दूसरे ताजिर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं वो हम ही हैं जिन्होंने उन सरों को तन से जुदा करके शहर की दीवारों पर लटकाया है। मैं वजीर सलाहुद्दीन हूँ। अगर बात इस्लाम और इंसाफ के झंडे की हिफाजत की हो तो मैं तुम में से हर एक का सर लेकर उन्हें उन दीवारों पर लटका दूंगा। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन चले जाते हैं। उधर चातलियन आगे बढ़कर मेहदूद पे हमला करता है। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। चातलियन कहता है मैंने लड़ाई से वादा किया था लेकिन तुम मुझे उस वादे को तोड़ने पर मजबूर कर रही हो, इसलिए हमें जंगी सिपाहियों को तीर आ लगते हैं। तीर कैरेक किले के सिपाहियों ने मारे होते हैं जो घोड़े दौड़ाते हुए उनकी जानिब बढ़ते हैं। बरसते हुए तीर देखकर सिपाही मेहदूद के गिर्द हिसार बना लेते हैं। मेहदूद उनसे कहता है जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने सुल्तान से वादा किया था मगर बैबोरा उसे नहीं जाने देता। वो सब मेहदूद को लेकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। चातलियन मैला के पास आकर कहता है जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैला कहती है उन्होंने मुझे अपने हाथों से आजाद कर दिया था, अब ये मुझे वापस क्यों ले जाना चाहते हैं। जवाब में चातलियन कहता है इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन का नया वजीर उनकी बात नहीं सुनता होगा। मैला कहती है कैसे, मैं समझी नहीं, क्या सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन की इजाजत के बगैर मुझे छोड़ दिया, उनकी मर्जी के बगैर। चातलियन कहता है बज़ाहिर ऐसा ही है, सिपाहियों काउंस को कैरेक के सिपाहियों को स्पुर्द कर दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये महल तक खैरियत से पहुंच जाएं। मैं एबलिन जा रहा हूँ। मैला पूछती है क्यों। तो चातलियन कहता है बादशाह ने अपना फैसला सुना दिया है, तकरीब के बाद मैं एबलिन का काउंट बनूंगा। कायरा में काजी फाजल लैला और शमसा के पास मौजूद होते हैं और कहते हैं मैं लैला और आपके बारे में मुतजस्सिस था शमसा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। तो शमसा कहती है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं काजी फाजल, हम ठीक है। फिर लैला से कहती है तुम जाओ मैं आ रही हूँ। लैला के जाने के बाद काजी फाजल कहते हैं आप अभी तक सलाहुद्दीन पर नाराज है मैं जानता हूँ, काश वो कुछ कर सकता। तो शमसा कहती है वो सिर्फ उस औरत की सजा पर आंखें बंद कर सकता था, इस तरह गुलजारा के कातिल बच गई, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी करे, मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। चातलियन ने जो कुछ किया वो मेरे ज़हन से कभी नहीं निकलेगा काजी फाजल, ना लैला ना मैं महफूज हैं। काजी फाजल कहते हैं आइए फिर आपको महल में ले चलते हैं और लैला के लिए, मगर शमसा इनकार कर देती है और कहती है काजी फाजल मेरे लिए तलवार के बेहतरीन उस्ताद का इंतजाम कर दें। सब कुछ होने के बाद मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी हिफाजत खुद करना सीख लेना चाहिए। काजी फाजल कहते हैं मैं आपके पास किसी को भेजूंगा। सराय में बालेन एबलिन के लोगों से मिलता है और कहता है जब मैं आपके चेहरों को देखता हूँ तो मैं आपका गुस्सा अपने ऊपर देख सकता हूँ, आप हक बेजानिब हैं, आपको लगता है कि मैंने आपको और एबलिन को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया। एक बड़ा शख्स कहता है लॉर्ड बालेन हम बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, आपके भाई ह्यू खुदा उसे जन्नत में कबूल करे, उसके जाने के बाद हम बहुत परेशान थे। बालेन कहता है मैं हर चीज से वाकिफ हूँ इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक शख्स पूछता है सब कुछ खत्म होने के बाद एबलिन पहले ही उस शैतान चातलियन को दिया जा चुका है। तो बालेन कहता है ये सच है कि बादशाह मालिक ने एबलिन को चातलियन को दिया था, लेकिन मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। वो बेशक मजबूत हैं, तादाद में हमसे ज्यादा हैं, लेकिन एबलिन हमारा है, आपका है, हम सबका है। मैंने एक बार इन जमीनों से मुंह मोड़ लिया था, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर चातलियन इस तख्त पर बैठना चाहता है तो उसे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। लियोन कहता है इस रास्ते पर मैं और आपके भाई के वफादार सिपाही हम सब आपके साथ हैं। यह सुनकर मार्कोस बालेन से कहता है चातलियन को उसकी सोच से भी ज्यादा लाशों से गुजरना होगा। कायरा में आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन भी एसिस से पूछते हैं क्या कार्तगन निकल गया है। तो एसिस कहते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे हैरानगी है कि क्या उसका दस्ता काफी होगा, अगर इमदाद की जरूरत मजीद पड़ी तो। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ऐसा नहीं होगा, कोई खबर हो तो बताना। कुछ में विलियम इमालेक के पास आता है और कहता है हम एबलिन जाने के लिए तैयार हैं। इमालेक आगे बढ़ते हुए कहता है चलो चलते हैं। विलियम कहता है एबलिन के लोगों में बेचैनी है, मैंने जो कुछ सुना उससे लोग चातलियन की हुक्मरानी से राजी नहीं है। तो इमालेक कहता है ये बगैर हुक्मरान के होने से बेहतर है। विलियम कहता है हमारे बादशाह यकीनन बेहतर जानते हैं, मेरी वाहिद तशवीश एबलिन में अंदरूनी तनाज़े का इम्कान है। अवाम को बागी करने वाला अगर कोई इक्तिदार में आ जाए तो ये आपकी भी ताकत को कम करेगा। मगर इमालेक कहता है विलियम मेरा फैसला
फैसला हतमी है, एवलिन चार्लियन का है। बालेन के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते साथ ही मार्लेक आगे बढ़ जाता है। उधर एवलिन किले की जानिब देखते हुए बालेन अपने साथियों से कहता है, मगरिब की तरफ किले की सबसे कमजोर जगह है, दीवारें नीची हैं और दूसरे हिस्सों की हिफाजत कमजोर है। अगर हमारे मंसूबे काम करते हैं और हम मगरिब की दीवारों से आगे निकल जाते हैं, खुफिया रास्ते हमें सीधे महल में ले जाएंगे। लेकिन एक अहम नुकता है, हमें हर मुमकिन हद तक खामोशी से अंदर जाना है। मार्कोस कहता है, फिक्र मत करें बालेन, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा। किले में चार्लियन चौका पहने खुश होते हुए कहता है, तो बताओ लाडगाई कैसा लग रहा हूँ। लाडगाई कहता है, बेहतरीन बेहतरीन, अब बताओ काउंट्स मेला कैसी है। तो चार्लियन कहता है, ठीक है, मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन रास्ते में कुछ कुत्तों ने मेरा सामना किया। वो काउंट्स मेला को ले जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मेरे साथ है। यह सुनकर लाडगाई कहता है, नूरुद्दीन जंगी मेला को ले जाना चाहता था, इसका मतलब है कि उसने हरीम किले के बाद कैरिक पर निगाहें जमाई हैं। तो चार्लियन कहता है, कुमारदार लाडगाई, मेला आप महफूज हाथों में है, तो अब मुझे तख्त से लुत्फानंदोज होने दो। ये कहते साथ वो भागकर तख्त पर बैठ जाता है। बाहर बालेन अपने साथियों से कहता है, तुमने मेरा साथ देकर मुझे इज्जत बख्शी, लेकिन आज तुम ना मेरे लिए लड़ोगे और ना मेरे भाई की मिरास के लिए। आज तुम जिस चीज के लिए लड़ोगे वो तुम्हारा अपना शहर एवलिन है। इसलिए मैं एक सिपाही वहां पहुंचता है और बालेन से कहता है, बादशाह का काफिला करीब आ गया है। यह सुनकर बालेन कहता है, चलो बादशाह के आने से पहले अपना हक लेते हैं, अब जंग का वक्त है। किले के अंदर चार्लियन के कौंत बनने की तकलीफ हो रही होती है, पादरियों से दुआएं दे रहे होते हैं। बाहर बालेन दावा बोल देता है और रास्ते में खड़े स्वीबी सिपाहियों को कत्ल करता ही चला जाता है। उसके साथी भी खून बहाकर रास्ता साफ करते हैं, मगर एक दस्ता वहां पहुंचकर उनका रास्ता रोक लेता है और वो दोनों तरफ से घेर लिए जाते हैं। मगर अगले लम्हे उस दस्ते पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। तीर मारने वाला कर्तगन होता है जो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। कर्तगन को देखकर बालेन भी चौंक जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। कर्तगन भी तलवार का खूब इस्तेमाल करता है और वहां मौजूद उनके सब दुश्मन मारे जाते हैं। बालेन कर्तगन से पूछता है, तुम लेकिन क्यों? तो कर्तगन कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम तख्त चाहते हो तो जल्दी करो। बालेन उसे कहता है, सलाउद्दीन को मेरा सलाम कहना। ये कहते साथ ही बालेन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि कर्तगन पलट जाता है। जमीन पे पड़ा एक जख्मी सिपाही उनकी बातें सुन लेता है। उधर काजी फाजल सलाउद्दीन भी से कहते हैं, खलीफा हज़रत मुलाकात के लिए आपके इंतजार में हैं। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, इंशाअल्लाह मैं एक अच्छा हल लेकर वापस आऊंगा। काजी फाजल पूछते हैं, आपका इरादा क्या है? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, उमरा ने हुक्म के मुताबिक महसूल देना शुरू कर दिया है, लेकिन मिस्र के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए हमें मजीद वसाइल की जरूरत है। काजी फाजल कहते हैं, एक और अहम मामले के बारे में मुझे आपको बताना है। एवलिन में पादरी चार्लियन पे पानी छिड़क रहा होता है, तो चार्लियन कहता है, मुझे दोनों ज्यादा पसंद नहीं है, तो बराए करम इसे जल्दी करें। यह सुनकर पादरी उसे जैसे ही ताज पहनाने लगता है, वहां पहुंचने वाला बालेन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत जल्दबाजी है चार्लियन? बालेन को देखते साथ ही सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें खूब चलती हैं, खून खूब बहता है, दोनों तरफ के सिपाही कट रहे होते हैं। ना लाडगाई रहम खाता है और ना बालेन। लड़ते लड़ते लाडगाई बालेन के साथी लियोन को मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर बालेन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, लियोन। इसलिए में चार्लियन उस पर हमलावर होता है और कहता है, जबकि तुम मरने के लिए तैयार हो तो तुम्हें इस बार वही मिलेगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। ये कहते साथ वो बालेन पर हमला करता है तो बालेन उसकी तलवार गिराकर तख्त पर ही उसे दबोच लेता है। हलचल के दौरान ही मार्लेक बाहर पहुंचता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? तो विलियम कहता है, मुझे डर है कि बालेन अपना हक लेने आया है। ये सुनते साथ ही मार्लेक गुस्से में आगे बढ़ा। एवलिन किले में बालेन की तलवार चार्लियन के गले पर, जबकि लाडगाई की तलवार बालेन के साथियों के गले पर होती है। वहां पहुंचने वाला मार्लेक गुस्से से कहता है, तो हिंद बंद करो, तलवारें नीचे रखो, कोई हिलता तक नहीं। तो विलियम कहता है, क्या तुमने बादशाह की बात नहीं सुनी? अपनी तलवारें गिराओ और घुटने टेक दो। ये सुनते साथ ही सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मार्लेक कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने हम मजलूम को मारने की? क्या आपका ईमान ये हुक्म देता है? तो लाडगाई कहता है, बालेन ने आपके हुक्म की नाफरमानी की, वो एवलिन पर हमला करके एक बहुत बड़ी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। बालेन कहता है, यह गद्दारी नहीं है, बल्कि अपना हक लेने के लिए एक बाइज्जत जदोजहद है और मैं कीमत अदा करने को तैयार हूँ। कायरा में शमसा मशकू वाले मैदान में उस्ताद का इंतजार कर रही होती है। इसलिए में वजीर सलाउद्दीन वहाँ आते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ तलवारबाजी सिखाने आया हूँ, सुना है कि आप सीखना चाहती हैं? ये कहते साथ ही वो तलवार उठा लेते हैं। शमसा कहती है, और मिस्र के तमाम लोगों के दरमियान आप ये काम करना चाहते हैं वजीर हजरत? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे लिए हर काम अहमियत रखता है शमसा खातून। तो शमसा कहती है, आपके पास ज्यादा हम काम होने चाहिए, आपका शुक्रिया। वो जाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि वजीर सलाउद्दीन उसे तलवार के जरिए रोक देते हैं। ये देखकर शमसा हमला करती है। उससे लड़ते हुए सलाउद्दीन भी कहते हैं, तुम इतनी बुरी नहीं हो, सबसे पहला उसूल आपको मालूम होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। तो शमसा कहती है, मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को जानती हूँ, जैसे मैं जानती हूँ कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं। उनके दरमियान मश्क जारी होती है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, उसूल नंबर 2, ख्वाहिश तलवार को अंधा कर देती है, तब आप दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं कर सकते। शमसा हमला करते हुए कहती है, दुश्मन को फौरी सजा मिलनी चाहिए। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैला की रिहाई काजी का फैसला था। शमसा पूछती है, क्या नुमाइशी सजा रोकना भी उसका फैसला था? वो वजीर सलाउद्दीन पे हमला करते हुए गिर जाती है तो वजीर उसकी जानिब हाथ करते हुए कहते हैं, कभी खुद को जमीन पे ना गिरने दें, मगर शमसा तलवार के जरिए खड़ी हो जाती है। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने पहले तालीम नहीं ली? तुम्हारी तलवार बहुत तेज है। जवाब में शमसा कहती है, जो चीज मेरी तलवार को तेज करती है वो इस शहर के अतराफ में घूमने वाले कातिल हैं। एवलिन में मार्लेक बालेन से कहता है, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, मैंने इसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन तुमने खुद मौत का इंतखाब किया, इसलिए मैंने बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई देता है। जिसे सुनकर मार्लेक पूछता है, ये क्या है, किस चीज का शोर है? कि एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है, महाराज बाहर बहुत बड़ा हुजूम है। बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, एवलिन हमारा है, एवलिन हमारा है, हम चार्लियन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। ये आवाजें सुनकर चार्लियन को बहुत गुस्सा आता है। बाहर लोग मुश्तइल होते हैं, उस सिपाही को मारते हुए कहते हैं, हमारे मरने से पहले चार्लियन तख्त पर नहीं बैठ सकता, एवलिन हमारा है। उन्हें रोकने के लिए सिपाही भरपूर कोशिश करते हैं। कायरा में लड़ते हुए वजीर सलाउद्दीन शमसा से कहते हैं, चार्लियन को जल्द या बदेर सजा दी जाएगी। शमसा पूछती है, और मैला आप यहाँ क्यों आई हैं? जो जख्म नहीं भरा उस पर नमक लगाने के लिए? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मेरी नीयत मजीद जख्म देने की नहीं है, बल्कि मैं तो शिफा देना चाहता हूँ। शमसा फिर से हमला करती है और इस बार भी उसकी तलवार गिर जाती है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, कायदा नंबर 3, सही वक्त पर निकाली गई तलवार ही हदफ पे लगेगी, हर किसी को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। ये कहते साथ ही वो शमसा की तलवार उठाकर उसे देते हैं और कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जहाँ मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी। शमसा कहती है, तब तुम कैदी थे, आज वजीर हो, तब मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुमने एक औरत को रिहा किया जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी सलाउद्दीन। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, शायद तुम ही हो जो मुझे मारना चाहती हो शमसा। इसलिए मैं खलील आकर कहता है, वजीर करते अपने सिपाहियों के साथ फ्रीजा मुकम्मल करके वापस आ गया है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन शमसा से कहते हैं, हमने आज काफी तरबियत हासिल
हासिल की है। ये कहते साथ ही वो चले जाते हैं। एबलिन में विलियम इमाम लेक से कहता है, महाराज अगर आप कोई फैसला नहीं करते तो हमें एबलिन के लोगों को ज़िबा करना पड़ेगा और ये हमारे लिए चीजों को मजीद पेचीदा बना देगा। लाड़गाय कहता है, महाराज मुझे बाहर की भीड़ को कम करने की इजाजत दें। चातलियन कहता है, बड़ी खुशी होगी। मगर इमाम लेक बालेन से कहता है, तुम इस तख्त का मजा ले सकते हो जिसे तुम चाहते हो बालेन, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। तख्त जाता हुआ देखकर चातलियन को बहुत गुस्सा आता है। कायदा में खलीफा के साथ वजीर सलाउद्दीन खाने की मेज पर बैठे होते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपने तफसील से नहीं सोचा कि फातिमियों जैसी अजीम रियासत कैसे खत्म हुई। आपके लोग मुश्किल हालात में जी रहे हैं, लेकिन आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें छोड़ा। खलीफा कहता है, इसकी वजह वजीरों के दरमियान लड़ाई थी। सलाउद्दीन भी कहते हैं, खलीफा को हिमायत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी दौलत की फिक्र है। खलीफा कहता है, वजीर आम खाओ गुटलियां ना गिनो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारा मसला क्या है। कुछ में लड़गाई मालिक से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने अंदरूनी मामलात को रोकने के लिए बालेन को आर्जी तौर पर एबलिन की हुकूमत सौंपी है। तो मालिक कहता है, लड़गाई तुम्हारी बात सुनना एक गलती थी, लेकिन बालेन अब मुश्किलात से गुजरेगा। लड़गाई कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक मसला है जो हमें फौरी तौर पर हल करना चाहिए। चातलियन गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि उसे एबलिन पर हुकूमत करने का मौका छीन लिया गया है। साथ साथ हमें गुस्से में पागल चातलियन दिखाई देता है। लड़गाई मजीद कहता है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुस्से में चातलियन क्या कर सकता है। तो मालिक कहता है, उसका पट्टा तुम्हारे हाथ में है, उसे रोको। लड़गाई कहता है, याद रहे कि फौज में चातलियन के बहुत से पैरोकार हैं। इमाम पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम उसे निपट नहीं सकते। तो लड़गाई कहता है, मैं इसके बरक्स आपको चातलियन के गुस्से को इस्तेमाल करने का कह रहा हूँ। इमाम पूछता है, कैसे। इधर वजीर सलाउद्दीन खलीफा से कहते हैं, मैं आपसे वो दौलत चाहता हूँ। खलीफा गुस्से से कहता है, मुझे ये अपने खानदान से विरासत में मिली है और आज तक किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, इसका मतलब है कि उनमें आपको ये याद दिलाने की जसारत नहीं थी कि आपको अपने लोगों की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए। खलीफा कहता है, मैंने मिस्र में अब्बासी खलीफा के एक अमीर को बतौर वजीर कबूल करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इधर लड़गाई इमाम से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कैरक में अभी कोई इक़दामात नहीं है। कायरा से वापसी पर काउंट मैला पर म्यादोद ने हमला किया। इसका मतलब है नूरुद्दीन जंगी का नया हदफ कैरक है और कैरक से गुजरने वाले हज के रास्ते और तिजारती रास्तों पर गौर करते हुए मेरे ख्याल में कैरक में चातलियों जैसी ताकत का इस्तेमाल करना हमारे लिए मुफीद होगा। यह सुनकर इमाम सोच में पड़ जाता है। उधर वजीर सलाउद्दीन खलीफा से कहते हैं, पैसा मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए होगा। ये कहते साथ ही वो फरमान मेज पर रख देते हैं और मजीद कहते हैं, अल ज़हर के नए हुज्जाज ने फतवा जारी किया है, लोगों को दौलत फराहम करने का यही वाहिद तरीका है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक जेब से दूसरी जेब में जाएगी। खलीफा कहता है, अगर मैं कबूल ना करूँ तो। सलाउद्दीन भी कहते हैं, मिस्र के तमाम मसाजिद में अब्बासी खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ा जाएगा और मिस्र के तमाम इमाम अब्बासी खलीफा के लिए दुआ करेंगे और मुसलमानों को इस अहकामात और हिदायत के साथ इबादत की दावत देंगे। फिर खड़े होकर कहते हैं, आपके पास अपनी दौलत को महल में ले जाने के लिए 2 दिन है। खलीफा को बहुत गुस्सा आता है और वजीर सलाउद्दीन चले जाते हैं। खलीफा कहता है, तुम हद से तजावुज कर रहे हो सलाउद्दीन, तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उधर इमाम कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा, लेकिन मैला को मनाना मुश्किल होगा। तो लड़गाई कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो आपके हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी। इमाम पूछता है, क्या एबलिन पर बालेन के हमले के बारे में तुम्हारी तहकीकात किसी नतीजे पे पहुंची है। तो लड़गाई कहता है, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। हमारी दीवानों पर हमले के दौरान एक जख्मी सिपाही ने सुना कि बालेन को सलाउद्दीन से मदद मिली है। ये कहते साथ वो उस लम्हे को याद करता है जब जख्मी सिपाही ने उसे बताया था। इस ख्याल के बाद बादशाह गुस्से से कहता है, तो सलाउद्दीन के साथ उसकी दोस्ती हमारी सोच से ज्यादा मजबूत है। लड़गाई कहता है, क्या आपके ख्याल में सुल्तान नूरुद्दीन इस बारे में जानता होगा। इमाम कहता है, वो यकीनन जानता होगा। सलाउद्दीन अपने सुल्तान के इनमें लाए बगैर सांस भी नहीं लेता, लेकिन वो अपने किए पर पछताएगा। अगर वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की जरूरत करता है तो इसकी कीमत जरूर बारी होगी, बहुत बारी। लड़गाई कहता है, हमारे पास जवाब देने का एक अच्छा मौका है महाराज। इमाम पूछता है, कैसे। तो लड़गाई कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन उसका पैदा होने वाला मलिक उसे हिफाजत के लिए मौसल से हलब मुंतकिल किया गया था। अब हमने सुना है कि वो उसे कहीं और ले जाएंगे। इमाम कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन, अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाने का वक्त है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। कायरा में काजी फाजिल वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं, एबलिन के बारे में इस इक़दाम पर आपने बड़ी दुरंदेशी का मुजाहरा किया वजीर हज़रत। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अभी कुछ मसले हैं काजी फाजिल, मगर हम जल्दी उनसे निपट लेंगे। काजी फाजिल कहते हैं, हमारे सुल्तान को मालूम है कि आपने अपने दुश्मन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, ऐसा ही है ना। उन्हें मालूम है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जब हमारे सुल्तान मैला के मामले में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं उन्हें इस कदर नाजुक इक़दाम की जरूरत की वजाहत नहीं कर सकता। एक बार बालेन तख्त पर बैठ जाए और हम अपने इरादों में कामयाब हो जाएं, फिर मैं उन्हें तफसील से वजाहत दूंगा। शाम में सुल्तान म्यादोद से कहते हैं, मैला का हमारे हाथ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ म्यादोद, क्योंकि उन्होंने उस बदमाश चातलियों को भी अपनी सफों में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है इमाम ने हमारे खिलाफ कैरक को मजबूत करने का फैसला किया है। कारवां पर हमला इसी की निशानी है। इसलिए इसफहानी आकर कहते हैं, एबलिन का तख्त बालेन ने संभाल लिया है। तो सुल्तान कहते हैं, ये अच्छी बात है, हमें बहादुर दुश्मनों की भी जरूरत है। इसफहानी मजीद कहते हैं, ये काम सलाउद्दीन की मदद से हुआ। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, सलाउद्दीन ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वो सलाउद्दीन जो हर कदम पे सोचता है और मेरी राय के लिए मुझसे पूछता है, उसने जो किया वो कुछ के अंदरूनी मामलात में बरह रास्त मुदाखलत है। म्यादोद कहता है, वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सुल्तान वजीर अमाद को बुलाकर कहते हैं, सलाउद्दीन से कहो कि फौरन शाम या रोकी सुल्तान के बेटे मलिक साले को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। बहादुर से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने सबसे कीमती खजाना आपके सुपुर्द किया है, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। तो यारुकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन सलाउद्दीन को भी अपनी जान के तौर पर देखते हैं, मगर एक दिन वो समझ जाएंगे कि ये सच नहीं है, इसलिए हमें स्लूबियन पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर यारुकी घोड़े से उतरते हुए कहता है, मलिक की हर कीमत पर हिफाजत करो। तीरों की आड़ में आकर यारुकी के बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं। बाकी सब बगी के गिर्द हिसार बना लेते हैं। स्लूबियन पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। बगी को भी बहुत से तीर जा लगते हैं। वक्फे वक्फे से यारुकी के सिपाही की लाशें गिरते ही चली जाती हैं। तीरों के बाद स्लूबियन की जानिब भागते हैं तो यारुकी कहता है, इनमें से किसी को भी जिंदा ना रहने देना। ये कहते साथ ही यारुकी सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला शुरू कर देता है। स्लूबियों की तादाद उनसे कहीं गुना ज्यादा होती है, मगर इसके बावजूद यारुकी के सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। बगी की जानिब जो भी काफिर बढ़ता है मारा जाता है। सिपाही जाने कुर्बान करके उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। एबलिन में बालेन मार्कोस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बादशाह मालिक ने फिलहाल एबलिन को मेरे पास छोड़ दिया, क्योंकि वो लोगों को उकसाना नहीं चाहता, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा। हमें इसकी हिफाजत को बढ़ा देना चाहिए। तो मार्कोस कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं जाती तौर पर एक दामाद को संभाल रहा हूँ। जहाँ तक मालिक का ताल्लुक है, आपके अज़म ने उसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। बालेन कहता है, हमारा सामना बादशाह मालिक को लड़गाई से है, हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, आपकी मेहमान आई है। कह रहे कि काउंट्स मैला। मार्कोस चला जाता है और मैला उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें मुझे सलाउद्दीन के पास ले जाना चाहिए
चाहिए बालेन, वो भी अभी। बालेन पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो मैला उस लम्हे को याद करती है जब इमाम मालिक ने उसे कहा था तुम चातियों से शादी करोगी। मैला ने इनकार किया था तो बादशाह ने कहा था ये इंतखाब नहीं बल्कि मेरा हुक्म है, मुसलमानों की नजरें कैरिक पर हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैला ने कहा था मैं कभी ये कबूल नहीं करूंगी जो इमाम मालिक ने कहा था, मरना चाहती हो या चातियों से शादी करना चाहती हो। ये सब जानने के बाद बालेन गुस्से से कहता है लानत हो, एबलेन उसे नहीं मिला, अब वो कैरिक चाहता है शैतान। तो मैला कहती है हमारे पास वक्त नहीं है बालेन। उधर यारूकी अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। बग्गी के पास मौजूद सिपाही जबरदस्त पैरा देते हैं। बहादुर की तलवार भी तेजी से चल रही होती है। एक सुलेबी सिपाही बग्गी के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करता है मगर यारूकी उसे मार गिराता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तमाम काफिर मारे जाते हैं और बहादुर सुलेबी के पास से मिला हुआ खत यारूकी को जाकर देता है जिसमें लिखा होता है सुल्तान नूरुद्दीन, गंदम की तरह औलाद भी एक बीज की मानिंद होती है, बीज की हिफाजत करें और अपने हाथ एबलेन से वापस हटा लें। ये पढ़ते हुए यारूकी कहता है एबलेन हाँ सलाहुद्दीन, देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इस पर क्या कहते हैं, तैयार हो जाओ हम जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब रवाना होने लगते हैं। कायरा में काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन के पास आते हैं और उन्हें खत देते हुए कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन ने ये भेजा है। काजी फाजिल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। वजीर सलाहुद्दीन खत खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है जैसे ही ये खत तुम्हारे तक पहुंचे तो हवा की मानद उड़ते हुए मेरे हुजूर पहुंचो। खत पढ़कर सलाहुद्दीन भी परेशान होते हुए कहते हैं बजाय जो कुछ हुआ उसके वजाहत देने का वक्त आ गया है। काजी फाजिल कहते हैं उनके गजब से अल्लाह की पनाह मांगे, आपको जल्द रवाना होना चाहिए। इसलिए मैं बजोक आकर कहता है बालेन की तरफ से खबर मिली है, वो कायदा के करीब है, वो एक बहुत आम मसले पर बात करने के लिए आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर काजी फाजिल कहते हैं हमें मोहतात रहना चाहिए, कैसे यकीन कर लें कि ये कोई जान नहीं है। बजोक मैला का हार सलाहुद्दीन भी को देते हुए कहता है ये उस कासिद ने भेजा है, बालेन चाहता था कि आपको ये दिया जाए ताकि कोई शुबा ना हो। यह सुनकर सलाहुद्दीन भी हार को देखने लग जाते हैं। कुछ में चाहते खुश होते हुए कहता है मैला इतनी जल्दी कबूल कर ले कि मुझे इसका यकीन नहीं था। यह सुनकर लड़गाई कहता है आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैला की जिंदगी का इन्हिसार आपके साथ शादी पर है तो इसलिए उसने हाँ कर दी। ये कहते साथ ही लड़गाई चला जाता है और चातियों फैल कर बैठ जाता है। उधर स्वयं में बैठा बालेन मार्कोस से पूछता है क्या आपको यकीन है कि वो पैगाम सलाहुद्दीन तक पहुंच गया होगा मार्कोस? तो मार्कोस कहता है हजरत यकीनन, आप फिक्र ना करें। इसलिए में काले चौके में मलबूस वजीर सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। बालेन उनसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी बदौलत मैं एबलेन का कौन हूँ। सलाहुद्दीन भी कहते हैं क्या मैं इस तरह बुलाने की वजह जान सकता हूँ? तो बालेन कहता है मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसलिए मैला सामने आती है और वो भी उनके साथ बैठ जाती है। बालेन कहता है इमाम मालिक के हुक्म के पेश नजर कौन मैला को चातियों से शादी करना होगी। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं तुम्हारी रजामंदी के बगैर? तो मैला कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। चातियों और लड़गाई शादी का काफिला लेकर कल कुछ से रवाना होंगे। अगर चातियों कैरिक का काउंट बन जाता है तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर कल आप रास्ते में काफिले पर हमला करते हैं तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये कोई खेल नहीं होगा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? कायरा के वक्त में हमारे खिलाफ खेल तरतीब देने वाली तुम ही थी। मैला कहती है अब हालात बदल चुके हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं कुछ भी नहीं बदला, दुश्मन अब भी दुश्मन ही है। तो मैला कहती है वजीर हजरत आप गलत हैं, हमारा दुश्मन मुश्तरका है और वो है चातियों। इसके अलावा कायरा में एक औरत की तौहीन करने के लिए दिलो जान से मचलने वाले लोगों की उस भीड़ से आपने मुझे कैसे निकाला मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। आपको ये खबर देकर मैं कम से कम अपना थोड़ा बहुत कर्ज तो चुका लूंगी। बालेन कहता है सलाहुद्दीन को जान नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो। शाम में दिन के बाद रात हो जाती है, रात के बाद सुबह हो जाती है मगर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन के इंतजार में होते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं अभी तक कोई खबर नहीं है। उफक पर भी अब तक उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। वजीर अमाद कहते हैं मेरे सुल्तान वो जरूर आएंगे, वो रास्ते में ही होंगे। इसलिए में स्पेनी आकर कहते हैं मेरे सुल्तान मेरी यारों की तशरीफ लाई हैं, वो आपसे फौरी मिलना चाहते हैं, उनके अहवाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। कायरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के पास आते हैं, उनके सब साथी तैयार होते हैं मगर काजी फाजिल परेशान दिखाई देते हैं और कहते हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं मजबूर हूँ काजी फाजिल, कैरिक में चातियों के आबाद होने का क्या मतलब है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। काजी फाजिल कहते हैं बिल्कुल, लेकिन आपने सुल्तान नूरुद्दीन की दावत कबूल नहीं की। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं शाम चातियों के साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। उधर शादी का जोड़ा पहने चातियों लड़गाई और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पर रुककर दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है हम इस तरफ से जाएंगे। लड़गाई कहता है क्या ये ज्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है? तो चातियों कहता है बिल्कुल है, ये मेरी खूबसूरत काउंस मैला की फरमाइश है और इसके अलावा ये कैरिक की रिवायत भी है, यानी अगर दुल्हा दुल्हन के बताए गए रास्ते से गुजरकर कैरिक किले तक पहुंच जाए तो वो साबित कर देगा कि वो दुल्हन को कितना चाहता है। ये सुनकर लड़गाई हंसते हुए कहता है अपनी सफाकियत के लिए मशहूर इस चातियों को तो देखो जरा। ये कहते सुनते साथ ही वो उस तरफ चल पड़ते हैं। शाम में यारूकी सुल्तान के साथ मौजूद होता है। सुल्तान पूछते हैं वो इसके बारे में कैसे जान सकते हैं यारूकी? तुम और तुम्हारे साथियों के अलावा कोई कैसे जान सकता है? अगर तुम उनसे ना निमट सकते तो क्या होता? हमारा शहजादा मारा गया होता तो क्या होता? यारूकी कहता है मेरे सुल्तान में इसकी पूरी तहकीक करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर सलाहुद्दीन ने एबलेन में उस बालेन नामी शख्स की हिमायत के लिए कुछ बादशाह के अंदरूनी मामलात में हाथ ना डाला होता, सुल्तान उसे वहीं रोक देते हैं और गुस्से से कहते हैं अब मेरी बात गौर से सुनो यारूकी। इधर सलाहुद्दीन भी और उनके साथी कैरिक किले की जानिब रवाना होते हैं जबकि दूसरी तरफ से चातियों भी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है लानत हो इन रवायात पर, अभी तक हम कैरिक पहुंच चुके होते। तो लड़गाई कहता है शिकायत करना बंद कर दो चातियों, आप काउंट बनने के लिए अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तो चातियों खुश होते हुए कहता है ठीक है मैं बढ़ता रहूंगा किले की जानिब खूबसूरत मैला का काउंट बनने के लिए। अब मेरे साथ चलो, पूरी तेजी के साथ चलो। चातियों की आमद को पूरी दुनिया देखेगी। किले में मैला सबीला के साथ मौजूद होती है। उसे परेशान देखकर सबीला कहती है मैला मुझे अंदाजा है कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैं खातून आकर कहती है शादी का काफिला कैरिक के करीब पहुंचने वाला है काउंट्स। मैला उसे भेज देती है और दिल ही दिल में खुश होते हुए कहती है जल्दी करो सलाहुद्दीन जल्दी करो। उधर वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, उनके साथियों के पीछे पीछे होते हैं। चातियों भी बड़े जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ता है। एक मुकाम पे रुकते हुए वजीर सलाहुद्दीन उस समय को याद करते हैं जब मैला ने उनसे कहा था मैं शादी के काफिले को एक नाहमवार रास्ते से आने की फरमाइश करूंगी। अगर आप किले की तरफ जाने वाले तंग रास्ते में घात लगाते हैं तो न सिर्फ आप मुझे बल्कि हज और तिजारती रास्तों को भी बचा सकते हैं। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन भी कहते हैं मैला ने इसी रास्ते का जिक्र किया था, हम इस रास्ते से जाएंगे और किसी तंग तरीन मुकाम पर घात लगाएंगे, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कैरिक किले में मैला परेशान होते हुए कहती है सलाहुद्दीन जल्दी करो बराए करम वक्त तक पहुंचाना। उधर सलाहुद्दीन भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने से यारूकी सिपाहियों के साथ पहुंचता है। यारूकी को देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और उनके पहुंचने पर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं यारूकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यारूकी कहता है ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत है, मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कायदे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते साथ वो समय को याद करता है जब सुल्तान ने उसे कहा था मैंने सलाहुद्दीन को बुलावा भेजा लेकिन वो नहीं आया, अब जाओ जहाँ भी हो उसे
उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। हमारी जब तक आमने सामने मुलाकात नहीं हो जाती ये फितना खत्म नहीं होगा। इस ख्याल के बाद वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो यारुकी? तो यारुकी कहता है, सुल्तान और उद्दीन के सख्त अहकामात हैं, मैं तुम्हें शाम में उनके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, किस वजह से? यारुकी कहता है, यह तुम सुल्तान से ही पूछना, कोई मुश्किल पैदा ना करो और चलो। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, अभी मेरा वक्त जाया ना करो। तो यारुकी कहता है, अभी मनमानी करने का वक्त खत्म हो गया है सलाउद्दीन, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मुझे और मेरे जंगजू को कुचलना होगा। अगर तुम्हें जसारत है तो आजमा कर देख लो। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और उनके साथी भी एक दूसरे को घूरते ही चले जाते हैं। नाज़रीन, एपिसोड भी यहीं पे इख्तिताम पजीर होती